everyone, welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. If you are new to my channel, please hit the subscribe button given below and do not forget to click on the bell icon. And today let's get started. And before starting, if you have not watched my previous video on halogen derivatives, solid state and coordination compound, you can click on the I button given above. And today we are going to start with a new topic, that is elements of group 16, 17 and 18. This is a chapter from Maharashtra State Board syllabus, standard 12th. So this chapter is from the inorganic section and this is the chapter number 7. Okay, so this is a chapter from inorganic and this is chapter number 7. This chapter is the continuation of the chapter modern periodic table, which you have been studied in standard 11th. Okay, so let's start with this topic. So the topics to be covered in this chapter are introduction, occurrence, electronic configuration of elements of group 16, 17 and 18, their atomic and physical properties of all these elements, analogous behaviors, chemical properties of elements of groups 16, 17 and 18, allotropy, oxo acids, oxygen and compounds of oxygen, compounds of sulfur, chlorine and compounds of chlorine, interhalogen compounds, uses of helium, neon and argon. And in today's video, we are going to cover introduction, occurrence, electronic configuration and atomic properties of elements of group 16, 17 and 18. So let's begin with introduction. Before moving to introduction, we will take a quick revision of what we have studied in standard 11. That is, can you recall? How does the valence shell electronic configuration of the elements vary in the p block of periodic table? So, the electronic configuration of all elements in p block is ns2 np126, correct? So the last electron will always enter the p orbital as we are talking about p block element, correct? So therefore ns2 will be always common for all, and then depending on the group it will be np126. Hence the electronic configuration of p block elements vary from ns2 np1, then ns2 np2, ns2 np3 and so on till ns2 np6. So in short it varies from ns2 np1 to ns2 np6. Next question is, name the first element of group 16, 17 and 18. So if you remember the periodic table which you have studied in 11th standard, so the first element of group 16 is oxygen, for group 17 is fluorine, while group 18 is helium. And today we are going to study these elements. So now we move towards the main introduction. So what are p block elements? P block elements are those elements in which the last electrons enters the outermost p orbital. So last electron कहाँ पे enter करेंगे? हमेशा outermost p orbital में. So they are called as p block elements. The p orbitals is how many in number? 3 in number. So if you remember the p orbital, it is 3 in number. That is, it have 3 subshells. So p orbitals are 3 in number. Each orbital can consist maximum 2 electrons. Yes, p orbital 3 है number में. Each orbital में कितना maximum electron आ सकता है? 2. So the maximum capacity
to accommodate the electron in p orbital is 6. Okay, so maximum electron कितना present हो सकता है p orbital में? 6. That is 3 into 2. Correct? Therefore, the p block elements is in the range of group 13 to group 18. Okay, so they are in the range of group 13 to 18. All are p block elements. Now their family heads are as follow. So for group 13 it is boron, for group 14 it is carbon, group 15 it is nitrogen, group 16 it is oxygen, group 17 it is fluorine, group 18 it is helium. As there are 6 maximum electrons present in your p orbital, so there are 6 possible groups. So the boron family, that is group 13, will have electronic configuration NS2 NP1, carbon will have NS2 NP2, nitrogen family NS2 NP3, oxygen NS2 NP4, fluorine NS2 NP5, and helium NS2 NP6. And this is the introduction for your p block elements. Now we move towards the occurrence. So occurrence of first we'll see about group 16 element. So group 16 element consists of oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Okay, so these are the elements present in group 16 and they are called as oxygen family. उन्हें oxygen family हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका head element है oxygen. They are called as oxygen family, group 16. Next thing, large number of metal ores are oxides and sulfides. यदि आप metal ore को study करोगे तो 90% of metal ores are always in the form of metal oxides or metal sulfides. Okay, so group 16 elements have the property to form ore. Okay, and they occur in the form of ore. So their occurrence is in the form of ore. So group 16 elements are also called as chalcogens. Why chalcogens? Because they have ore forming elements. So they are called as chalcogens. You need to remember this word as they are ore forming elements. Now talking about the presence of oxygen, that is occurrence of oxygen. So out of all these elements in group 16, oxygen is the most abundant element on earth. Out of all this, the oxygen is the most abundant element on earth and it forms 20.95% by volume of air and 46.6% by mass of earth's crust. Next to oxygen is sulfur, which is 0.034% mass of earth crust and it is generally formed in the combination. ओके, सल्फर कभी भी आपको अकेला नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको कॉम्बाइंड फॉर्म में मिलेगा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है ओर फॉर्म करना. सो दे आर फॉर्म्ड एज सल्फेट्स. दे आर जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स लाइक gypsum. The formula for gypsum is CaSO4 twice water, Epsom salt, okay, and so on. Next is selenium and tellurium. Selenium and tellurium are found as metal selenides and tellurides in sulfide ores. तो सेलेनियम और टेरिलियम खुद ओर तो नहीं बनाते बट सल्फाइड ओर के अंदर पाए जाते हैं. किस फॉर्म में? मेटल सेलेनाइड्स और टेल्यूरेट्स. Now polonium is an radioactive element and is decay property of thorium and uranium. So oxygen किधर मिलता है हमें? अकर होता है in the form of ore, that is metal oxides, or it is found in the air or in the earth crust. Sulfur again in the form of ore, that is metal sulfides or metal sulfates. Selenium and tellurium is again found in the form of metal selenides or tellurides in the form of sulfide ore, and polonium is an radioactive element.
So this is the occurrence of group 16. Now we move toward the occurrence of group 17. So the parent compound for group 17 is fluorine, followed by chlorine, then bromine, iodine, and astatine. Now they make group 17. As you all know, group 17 elements are called as halogens. You need to remember this name. For group 16, chalcogens, and for group 17, halogens. Halogens are very reactive. Halogens बहुत ज़्यादा reactive है. क्यों ज़्यादा reactive है? Because they are highly electronegative. Halogen ज़्यादा electronegative होने की वजह से ज़्यादा reactive है और इसलिए वो कभी भी free state में नहीं मिलता. Never found in free state. You will never find halogen as a free state, that halogen gas, never in free state. They always form compounds because they are very reactive. और वो रिएक्टिव क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हम ऐसे बोल सकते हैं हैलोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बहुत रिएक्टिव है और बहुत रिएक्टिव होने की वजह से कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट देयर अकरेंस, फ्लोरीन अकर्स मेनली एज इनसॉल्यूबल फ्लोराइड्स. ओके, इनसॉल्यूबल फ्लोराइड्स के फॉर्म में, इवन इन स्मॉल क्वांटिटी इन द सॉइल, freshwater plants, bones and teeth of animals. So fluorine is present in the form of insoluble fluorides in soil, freshwater plant, bones and teeth of animals. Seawater contain chlorides, bromides and iodides. ये फ्री फॉर्म में अगेन नहीं पाया जाएगा क्योंकि रिएक्टिव है. सो किसके साथ पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. मतलब ये सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता है. ओके, सो द मोस्ट कॉमन दैट यू फाइंड इन सी इज NaCl. दैट इज योर सॉल्ट. जो नमक आप रोज खाते हो वो है NaCl, एंड दैट इज द मेन अकरेंस ऑफ क्लोरीन इन सी. सो ऑल दिस क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर फाउंड इन सी along with the metals sodium, potassium, magnesium, calcium in the form of salts. Now marine animals के body में भी iodine पाया जाता है. Again, astatine is the last member of halogen and again it is radioactive. So to summarize, fluorine is found in insoluble fluoride form in fresh water, soil, bone and teeth of animals. Chlorine, bromine and iodine is found in sea, but again in the form of salt, and astatine is an radioactive element. Now moving towards the occurrence of group 18. So this is an helium family and they are first helium, next neon, then argon, then krypton, then xenon and the last one is radon. They all make the group 18. They are called as noble gases. इन्हें noble gases क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत stable element है. उनके सारे orbitals completely filled हैं. That is NS2, NP6. सारे orbitals completely filled हैं, इसलिए वो कभी react नहीं करते, इसलिए they are noble gases. And all these noble gases except for radon occur in atmosphere. They all occur in atmosphere. Their abundance in dry air is nearly 1% with argon as the major constituent. इन सारे नोबल गैसेस को मिला के 1% एयर में प्रेजेंट है. सब मिलके 1% एयर को बनाते हैं और उनमें सबसे मेजर कौन है? आर्गॉन. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट हीलियम. सो द मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस. जो खाना हम पकाने के लिए यूज करते हैं गैस, उसका वो हीलियम का मेन सोर्स है. Okay, helium and neon are found in minerals of radioactive origin. Okay, radioactive origin के जो minerals हैं जो radioactivity दिखाते हैं उनमें भी helium और neon पाए जाते हैं. Xenon and radon are the rarest element of this group. इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है. So this was the occurrence of group 18. Now moving towards the electronic configuration of elements of group 16, 17 and 18. So as I have told you, the electronic configuration is NS2NP126 for p block elements. So for the group 16 it is NS2NP4,
group 17 NH2NP5, for group 18 NH2NP6. And you can see this complete group here. So this is group 16, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, and their electronic configuration. Okay, next is the group 17 elements, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine, their electronic configuration. And always remember, whether it is group 16, 17, 18, in all of these cases, the last electron will always enter the p orbital because they are p block elements. And you need to remember their electronic configuration. Okay, now next is atomic properties of group 16, 17 and 18 elements. This is important to remember. Their periodic trend and atomic properties. So the first properties, atomic or ionic radii. So what is atomic radius? We will take a quick revision of that. So atomic radius is 1/2 of the internuclear distance. 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atoms. So these are the two adjacent atoms which are forming the bond. So this bond, this is the complete distance. So half of this distance, half of this internuclear distance is called as atomic radii. Okay, so ये दो एटम है और ये उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है. इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, मतलब ये पार्ट, उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई. ठीक है. नाउ इन ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप. तो इस सारे ग्रुप में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा. व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस? क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा शेल ऐड होते जाएंगे. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे सब मॉलिक्यूल्स में, सारे मॉलिक्यूल्स में एक एक शेल बढ़ते जा रहा है. इसमें सिर्फ 2 शेल था, इसमें भी 2, इसमें 3, फिर इसमें 4 एंड सो ऑन. तो सब में शेल बढ़ रहा है. शेल बढ़ रहा है मतलब साइज ऑफ एटम भी इंक्रीज होगा. तो इसके लिए इतना बड़ा है तो इसके लिए छोटा सा होगा. करेक्ट. सो शेल इफ इट इज इंक्रीजिंग, द फर्स्ट वन का साइज सपोज ऑक्सीजन का ये है तो पोलोनियम का साइज ये रहेगा. सो शेल बढ़ रहा है, इसके मतलब ये एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है और इसलिए एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा. So as we go from down the group, the atomic size increases and therefore atomic radii or ionic radii also increases because there is increase in the number of quantum shell. But now talking across the period. Across the period मतलब ऐसे. ठीक है. ये डाउन द ग्रुप तो वो बढ़ रहा है, बट अक्रॉस द पीरियड वो घट रहा है. ओके, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है बट अक्रॉस द पीरियड घट रहा है. व्हाई? नाउ दिस हैपेंस ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. ओके, सो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. और उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से योर effective nuclear charge increases. So what is the relationship of effective nuclear charge with atomic radius? ये जल्दी से मैं एक्सप्लेन करती हूँ. So उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन का सपोज इतना ही है, छोटा सा है. करेक्ट. तो इसका हाफ डिस्टेंस. और हीलियम का क्या होगा? फ्लोरीन का होगा और छोटा. करेक्ट. क्योंकि across the period atomic radii or ionic radii decreases. Now as this decreases तो outer orbital come more close to the nucleus. साइज डिक्रीज हुआ इसलिए बाहर का ऑर्बिटल, जो सबसे बाहर का ऑर्बिटल है, इसको बहुत सारे ऑर्बिटल से. करेक्ट. उसके बाहर का ऑर्बिटल न्यूक्लियस के और पास आ जाएगा. न्यूक्लियर के और पास आने की वजह से न्यूक्लियर की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. बट इस केस में, ऑक्सीजन के केस में, उसका बाहर का ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा दूर है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, एटॉमिक रेडियाई बड़ा है. उसके वजह से न्यूक्लियस से उसका बाहर का ऑर्बिटल ज़्यादा दूर है. ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस. करेक्ट.
ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कम है। ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कम है, मतलब न्यूक्लियस का इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्ट है वो कम है, बट इस केस में वो इफेक्ट ज़्यादा है, करेक्ट, क्योंकि साइज छोटा है। तो आपको ये 3-4 पॉइंट्स याद रखना है। पहला, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन ईच ऑफ देम देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक and ionic radii, but as we move across the period, that is from 16, 17, 18, the size decreases. साइज डिक्रीज होने के वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट बढ़ जाएगा, करेक्ट। एंड रिमेंबर, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई। ये एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना होगा। Group 17 elements, that is halogens, have the smallest atomic radii. Next is ionization enthalpy. Now, what is ionization enthalpy? The energy required to remove an electron from the isolated gaseous atom in its ground state is ionization enthalpy. Suppose मेरे पास ये एटम है जिसमें बहुत सारे शेल्स हैं और उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी लगेगा, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकालना है, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगा मुझे, उसे मैं कहूँगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों निकालने के लिए एनर्जी लगेगा? कि ऑफ कोर्स ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कुछ हद तक अपनी तरफ पुल कर रहा है। एक कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कोई तो अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में बंधा हुआ है, पर उसको बाहर निकालने के लिए मुझे कोई एनर्जी डालना है और उस एनर्जी को मैं कहूँगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ द ग्रुप, इफ यू मूव इन द पीरियड, दैट इज ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स ऑलवेज हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये 16, 17, 18 एलिमेंट्स सबके आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, बट एज यू मूव डाउन द ग्रुप their ionization enthalpy decreases. जैसे ग्रुप में मैं नीचे की तरफ मूव करूंगी, आयोनाइजेशन का एंथैल्पी डिक्रीज होगा। Why? Because atomic size increases. See, suppose I am talking about the oxygen and then I talk about sulfur. ठीक है, ऑक्सीजन के बाद है सल्फर। तो क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन का साइज कम था, सल्फर का साइज बड़ा है। साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है इस इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, करेक्ट। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से दो मैग्नेट को आप ज़्यादा दूर पे रखो तो एक दूसरे को उतनी ताकत से अट्रैक्ट नहीं कर सकते जितना वो पास होने पे कर सकते हैं, करेक्ट। तो साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए मुझे कम ताकत लगेगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस ने ज़्यादा जोर से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं, इसलिए मुझे इसे बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ताकत लग रहा है। पर इसमें साइज बड़ा होने की वजह से, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम ताकत से पकड़ेगा और उसको निकालने के लिए मुझे एनर्जी कम लगेगी। इसलिए जैसे ही मैं नीचे जाती हूँ हर ग्रुप में, 16 में, 17 में, 18 में, साइज इंक्रीज होने वाला है। साइज इंक्रीज होने की वजह से ऑफकोर्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा। But talking across the period, ionization enthalpy will increase. Yes, you are correct. The reason is atomic size decreases. तो हमने देखा था यहाँ पे सब में, यहाँ पे क्या हो रहा था, across the period atomic size decrease हो रहा था, करेक्ट। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से, एटॉमिक रेडियो डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, अब मुझे ज़्यादा ताकत लग रही है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को पुल करके बाहर निकालने में, क्योंकि न्यूक्लियस उसे टाइट पकड़े हुए हैं, क्योंकि साइज छोटा है, और इसलिए यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। एंड दिस इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल। सो दिस इज अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So what is exactly electronegativity? So the ability of a covalently bonded atom to attract the shared electrons towards itself is called as electronegativity. And remember,
The electronegativity decreases as we move down the group. So fluorine is most electronegative, and as we move towards iodine, the electronegativity will decrease. Remember, fluorine is the most electronegative element in the periodic table. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. The most electronegative element in the periodic table is fluorine. Next to fluorine is oxygen, and halogens have high electronegativity. ठीक है, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसमें से भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में. और नेक्स्ट टू फ्लोरीन नेक्स्ट नंबर पे आता है ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस when an electron is added to an isolated gaseous atom in its ground state is called as electron gain enthalpy. Suppose मेरे पास O2 मॉलिक्यूल है, करेक्ट. O2 में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो न्यूट्रल है. बट अब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी. O2 इतने इजिली इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल है. जो भी सिस्टम स्टेबल होता है वो अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा, करेक्ट. तो इसलिए वो इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा. पर उसने गेन किया तो वो अनस्टेबल बन जाएगा, और इधर हमें कुछ तो एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को O2 में डालने के लिए भी. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिक्वायर टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन एंटर द O2 एंड मेक इट अनस्टेबल, करेक्ट. एंड देन इट विल फॉर्म एन एनायन, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन में अब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट से. सो रिमेंबर, इन ग्रुप 16-17 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप. ठीक है, लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप मीन्स इजिली एंटर कर सकता है इलेक्ट्रॉन. बट हाउएवर इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. आपने एक बात याद रखनी है, इफ साइज स्मॉल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगी. सो ऑक्सीजन की कम है. अभी हमने क्या कहा था कि जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और भी लेस नेगेटिव होती जाएगी. ठीक है, बट ऑक्सीजन और सल्फर, मतलब सल्फर का कम होना चाहिए था ऑक्सीजन से, करेक्ट. ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, तो हम नीचे मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो रही है. बट इसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से सल्फर का कम होना चाहिए था, बट हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑक्सीजन का कम है एज कंपेयर टू सल्फर. ये हमारे स्टेटमेंट का उल्टा है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कम है सल्फर से. सेम थिंग हैपेंस इन फ्लोरीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो जैसे हम मूव करेंगे नीचे की तरफ तो वापस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाएगी. बट स्टिल फ्लोरीन का ज़्यादा कम है क्लोरीन से. क्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था फ्लोरीन से इस स्टेटमेंट के हिसाब से, बट फ्लोरीन का कम है क्लोरीन से. वाई? अगेन द साइज ऑफ, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. सो फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी than that of chlorine, again due to small size of fluorine. And remember, group 18 elements कभी भी ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं. उनके सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से हम इस इलेक्ट्रॉन को इसमें जल्दी से नहीं घुसा सकते, एंड देयरफॉर दे शो लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मतलब हमें इलेक्ट्रॉन उसमें घुसाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेबल है. दे आर नोबल गैसेस, दे आर हाईली स्टेबल, एंड देयरफॉर दे हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ there is one question, try this in your textbook, which you have to answer by looking at this table. Okay, so you have to take a look on this table and answer this question about group 17 elements. So the first question is, you have to explain this property, that is atomic size. So अभी atomic size की तरफ move करो. So this is about the atomic radius, that will tell us about the atomic size. तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं ग्रुप में नीचे की तरफ मूव कर रही हूँ एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है.
Why atomic size increases? Because there is increase in number of quantum shell. So in group 17 elements, as we move down the group, जैसे ही हम नीचे की तरफ मूव करेंगे उसकी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, क्योंकि उसमें इंक्रीज होगा क्वांटम नंबर ऑफ शेल्स का. ठीक है. नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो आप क्या देख रहे हो, फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1680, वाइल आयोडीन का है 1008. तो आयोडीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है फ्लोरीन से. और जैसे ही हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है. सो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के वजह से न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा. न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, और उसकी वजह से हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली उसमें से निकाल पाएंगे. Therefore, ionization enthalpy decreases down the group as increase in atomic radius. Next is your electronegativity. So electronegativity decreases down the group क्योंकि फ्लोरीन is the most electronegative element, और जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे electronegativity decreases. Next, electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy becomes less negative. You can see it becomes less negative as we move down the group, except for फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है. ये अपोजिट होना चाहिए था, क्लोरीन का फ्लोरीन से कम होना चाहिए था, बट फ्लोरीन का कम है बिकॉज फ्लोरीन हैव अ स्मॉल एटॉमिक साइज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर. व्हाई? जबकि ट्रेंड क्या बताता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए सल्फर से, बट ऑक्सीजन का कम है. द सेम रीजन दैट द ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज. नेक्स्ट वाज दिस क्वेश्चन. Elements of group 16 generally show lower values of first ionization enthalpy compared to group 15 element. Why? देखो हमने क्या पढ़ा है, as we move towards the period, जैसे हम periods में मूव करते हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती जाती है, सॉरी इंक्रीज होती जाती है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाती है. सो एज वी मूव टू इन द ग्रुप, मतलब 13 से 18 की तरफ मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी. व्हाई? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी. बट स्टिल 15 और 16 में अब उल्टा दिखाता है. 15 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना कम होना चाहिए था 16 से. करेक्ट. 16 का साइज कम है 15 से. 16 साइज के 16 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका साइज छोटा है 15 ग्रुप के एलिमेंट से, इसलिए उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था. बट इसमें उल्टा दिखा रहा है. व्हाई? बिकॉज 15 ग्रुप के एलिमेंट्स है उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है. वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल से. सो कभी भी याद रखना, कोई भी ऑर्बिटल यदि हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो तो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है. सो पी ब्लॉक के लिए बात करें तो P3 या P6 एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं. मतलब ग्रुप 15 एंड ग्रुप 18 आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स in periodic table because their p orbital is half filled. Okay. और ग्रुप 15 में ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है p ऑर्बिटल के हाफ फिल होने से, और इसके वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगेगी. ये ज़्यादा स्टेबल है. करेक्ट. ग्रुप 16 के एलिमेंट से ज़्यादा स्टेबल है. ग्रुप 16 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Np4. करेक्ट. और ग्रुप 15 का है Np3. तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी, ना कि इससे. और दूसरी बात, 16 से यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, 16 ग्रुप के एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Np2 NS2 Np3.
मतलब वो भी हो जाएगा हाफ फिल्ड और उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए 16 ग्रुप एलिमेंट क्या बोलेगा, हाँ ले लो, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लो जल्दी से और मुझे स्टेबल कर दो। इसलिए उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ये रहेगा, मतलब इजिली वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे देगा। इसलिए उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि उसको स्टेबल बनना है। करेक्ट। तो आई होप ये आपको समझ गया हो, क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं दे सकते, इसलिए उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। बट 16 ग्रुप के एलिमेंट्स में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे। नेक्स्ट इज the values of first ionization enthalpy of sulfur and chlorine is this. Explain this. ठीक है, तो क्लोरीन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सल्फर से ज़्यादा है। Why? Because as we move in the पीरियड में जैसे हम मूव करते हैं क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ जाता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ गया, इसलिए न्यूक्लियस उसको ज़्यादा टाइटली पुल करके रखेगा, और इसलिए मुझे जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और वही होता है सल्फर और क्लोरीन में। तो सल्फर यहाँ पे है, फिर क्लोरीन है, तो पीरियड में बाद में कौन सा आता है, क्लोरीन। तो सल्फर से क्लोरीन की तरफ मूव करते हुए सल्फर का साइज इतना बड़ा है तो क्लोरीन का साइज छोटा है, और इसलिए क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पर सल्फर का लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा है और सल्फर का कम है। So that's all for today. Thank you. If you have any doubt, you can ask on this email ID askyourdoubt04@gmail.com. And if you have liked my video, please give it a thumbs up. Share this video to more and more of your friends, and do not forget to subscribe my channel. Meet you in the next lecture. Before departing, the thought of the day is the two most powerful warriors are patience and time. That's all for today. Thank you. Stay tuned.